تھا تجھ کو دلہن میرے پیارے وطن میرے پیارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد ہمارا مشہور ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا، تنزیلہ اور 2-3 لڑکیاں، اور آپ ساتھ میں کھڑے ہو کے صرف 6 لائن پڑھ جائیں، جہاں پہ وہیں کھڑے ہوں جائے گے کے پاس جا۔ آپ تینوں، اچھا آپ تینوں ادھر ہو جاؤ، دونوں کو لے، بس وہیں چلو۔ وہ لیے رہو ہاتھ میں، سب جھنڈے لیے رہو، تھوڑا ہلاتے رہو کہ لگے 15 اگست 26 جنوری۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب کو 26 جنوری بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی، سمجھو وہی ہمیں بھی، جگ ہے جہاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، مذہب ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیٹھ رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیٹھ رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 جنوری کے موقع پر یہ وہ بچیاں ہیں جو 10ویں 11ویں 12ویں میں پڑھ رہی ہیں اسکول میں، اسکول کے ساتھ ساتھ یہ مدرسہ دینیات بھی پڑھ رہی ہیں، اور آج پہلی بار انہوں نے اپنی زندگی میں مدرسے کی مناسبت سے 26 جنوری کے پروگرام کو اٹینڈ کر رہی ہیں۔ آپ لوگ ان کے لیے دعائے خیر فرمائیں، اور دیکھیں کہ ہماری بہن بیٹیاں بھی چاہیں
تو اپنے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو بہت ساری چیزیں جیسے 26 جنوری 15 اگست اس کے بارے میں معلومات رکھتی ہیں، شوق رکھتی ہیں، ان کا شوق ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے کتنے بہترین انداز میں یہ آپ سب کو نظم پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سبھی۔ ہمارا اسلامی مقصد کیا ہے؟ ہمارا اسلامی مقصد یہ ہے کہ اپنے اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا اسلامی نعرہ کیا ہے؟ ہمارا اسلامی نعرہ یہ ہے میری اچھی سہیلی میری اچھی کتاب، میری اچھی کتاب میری اچھی سہیلی۔ ہم سب اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی پڑھتے ہیں۔ چاک ہے جگر میں گرتی آئی ہوں رفو کر کے، چاک ہے جگر میں گرتی آئی ہوں رفو کر کے، جاؤں گی حقیقت سے سب کو روبرو کر کے، جاؤں گی حقیقت سے سب کو روبرو کر کے۔ وطن سے محبت کی مثال اور کیا ہوگی، وطن سے محبت کی مثال اور کیا ہوگی۔ ہمارے پوروں نے نماز پڑھی ہے گنگا میں وضو کر کے، سبحان اللہ۔ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہے وہ پاس با ہمارا، ہم اس کے پاس با ہے وہ پاس با ہمارا۔ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ مدینہ کی مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری۔ ہم دانا تھا کسی سے پہلے روا ہمارا، ہم دانا تھا کسی سے پہلے روا ہمارا۔ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اے عرض ہند تیری حرمت پہ کٹ مریں گے، اے عرض ہند تیری حرمت پہ کٹ مریں گے، اے خون ہو گیا اب تک روا ہمارا، اے خون ہو گیا اب تک روا ہمارا۔ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔
न झूठ बोलेंगे, न झूठ सुनेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, न गीबत करेंगे, न गीबत सुनेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरी सच्ची सहेली, मेरी अच्छी किताब, मेरी अच्छी किताब, मेरी अच्छी सहेली, अपना इस्लामी मकसद क्या है? मकसद ये है मुझे अपने और दूसरे लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब इसके बाद आप सबके सामने 8 से 10 मिनट बयान करने के लिए एक बेहतरीन बच्ची आ रही हैं और ये सुनाएंगे। इनके स्पीच का उन्वान है 26 जनवरी और मुसलमान। नाम है साइमा। ये आएंगी और आप सबको कुछ अच्छी बातें बयान के जरिए सुनाएंगी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। असातिज़ा इकराम और मेरे हम तलबा व तालिबात और मेरे हम मदरसा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे जिस मौजू पर लखुशाई की सआदत मिली है वो है यौम जमहूरिया और हिंदुस्तान मुसलमान। चाक है जिगर फिर भी आई हूँ रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आई हूँ रफू करके, जाऊंगी हकीकत सबको रूबरू करके। वतन से मोहब्बत की मिसाल और क्या होंगी, वतन से मोहब्बत की मिसाल और क्या होंगी, हमारे पुरखों ने नमाज पढ़ी हमें वजू करके। वाह वाह, क्या बात है। हाज़रीन महफिल, आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ किस लिए जमा हुए हैं। 26 जनवरी के दिन जिस तरह हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया के नाम से कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तकरीब का इन्हिकाद किया जाता है, उसी तरह से दीनी मदरसे में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उसी में से एक कड़ी है आरवी शहर के खड़गपुरा वार्ड के रजा मस्जिद का मदरसा। जब से यहाँ हजरत जाहिद कादरी आए हैं तब से प्रोग्राम बहुत बेहतरीन अंदाज में मोहल्ले के नौजवानों की मदद से किया जा रहा है और हम सब ने हजरत की कोशिश से ये करके दिखाया है कि मदरसे की ओर से ये प्रोग्राम करेंगे और करते रहेंगे। हम सभी बच्चे और बच्चियों को इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की जरूरत है। हाज़रीन महफिल, हिंदुस्तान का शुमार दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्कों में किया जाता है, जहां हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब के लोग बड़ी मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोग लड़ाई लड़े और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। फिर हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें हर मजहब वालों को रहने का हक दिया गया और 26 जनवरी 1950 को ये कानून नाफिज किया गया। उसके बाद ये कानून चला, इस कानून के बाद से हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया का आगाज हुआ। 26 जनवरी के दिन जिस तरह हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया के नाम से तकरीब का इन्हिकाद किया जाता है, उसी तरह से मदारिस इस्लामिया में भी जश्न का एहतमाम किया गया है और हमारे मदारिस इस्लामिया में हर एक बच्चे ने बहुत मोहब्बत के साथ हर एक नात वगैरह सब लिए हैं और हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का रोल बहुत अहम रहा। हम इसका अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि सन 1857 में 24,000 मुसलमानों ने वतन अजीज के खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था कि गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हाज़रीन महफिल, बहुत से लोगों का कहना है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया, तो आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि बताओ तो सही, हिंदुस्तान को ताजमहल की खूबसूरती किसने दी? बताओ तो सही, लाल किले की बुलंदी और बुलंदी अहमद तुम्हें किसने दी? कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हें किसने दी? चार मीनार की खूबसूरती तुम्हें किसने दी? हाज़रीन महफिल, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मुसलमानों की गवाही और मोहब्बत की शहादत देता है। मिलेंगी मंजिले मकसूद, हम ये ईमान रखते हैं। मिलेंगी मंजिले मकसूद, हम ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जब हमें आजादी मिली तो
जो कानून मुल्क के लिए बनाया गया उसमें हर मजहब और मिलत के लोगों को रहने का हक दिया गया, अपने मजहब पर चलने की आजादी अता की गई। उसमें बताया गया कि मुल्क किसी भी मजहब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा। कानून के मुताबिक हर शहरी चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, वो कानून की निगाह में बराबर रहेगा और हर शहरी को आजादी राय, आजादी ख्याल, आजादी मजहब का तकाज़ुल रहेगा कि वो अपने अलहदा तालीम के लिए, और इन सब में अक़लियतों को भी उनका हक दिया गया कि वो अलहदा तालीम के इदारे कायम कर सकती है और अपने मजहब की इत्तेआत कर सकती है। लेकिन अफसोस होता है कि बराबरी के हुकूक मिलने के बाद आज भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कभी घर वापसी के नाम पर, तो कभी लौ जिहाद के नाम पर, कभी मुस्लिम होने की बिना पर अफरोज़ इस्लाम को जिंदा जला दिया जाता है, तो कभी एक हाफिज़ कुरान बच्चे के ऊपर चाकू से हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कभी मंदिर का झूठा मुद्दा बनाकर 25 बेकसूर मुसलमानों पर लाठीचार्ज करके उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, तो कभी मुसलमानों की टोपी, तो कभी अजान पर सवाल उठा दिया जाता है, कभी भारत माता की जय नारा लगाने पर जोर दिया जाता है, और कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों के जरिए अपने मजहबी नारा लगाने पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। और इन सब के बावजूद किसी शय पसंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती कि हमको न सताओ कि गुनहगार नहीं है हमको न सताओ कि गुनहगार नहीं है हम। ये किसने कह दिया तुमको कि हम वफादार नहीं हैं? और जब विदेश ने मांगा लहू हमने दिया, और जब विदेश ने मांगा लहू हमने दिया। हम अहले वतन है, कोई गद्दार नहीं है। हाज़रीन महफिल, और कभी मदारिस इस्लामिया के खिलाफ झूठे और घटिया इल्जामात लगाए जाते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो, तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, जहाँ कुरान रखते हैं वहाँ पर बम नहीं रखते। सुभान अल्लाह। इन हालातों का मुशाहिदा करने के बाद ये मालूम होता है कि मुस्लिम अक़लियत को आइन में मिलने वाली तमाम हुकूक से मरहूम रखने की मुकम्मल कोशिश जोर शोर से की जा रही है, और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी देख रही है। जब हमारे मुल्क के कानून ये है कि हर मजहब का आदमी अपने अपने मजहब पर अमल कर सकता है, तो कोई भी किसी भी मजहब की बुराई क्यों करता है? वो खुद जालिम है। और ऐसे मुल्क के कानून जिस पर हर इंसान हिंदू मुस्लिम सबको अमल करना है। मेरे प्यारे मुसलमान भाई बहनों, जहाँ तक देखा जाए तो इसमें हमारी ही गलती है। क्यों? क्योंकि हमने कभी दस्तूर हिंद को जानने की कोशिश ही नहीं की। अरे दस्तूर हिंद की तो बात छोड़िए, हमने तो हमारे दीन को जानने की कोशिश नहीं की। कभी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो 4 लोग आके हमको ये उल्टी बातें सुनाते हैं। यही तो हमारे इस्लाम की एक खासियत है। जब हमारे हुजूर ने कुछ अच्छा काम करने गए तो उन्हें तो लोगों ने पत्थर मारे। ये तो हम तो फिर इंसान है, यहाँ तो क्या क्या बातें नहीं करते। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो मुसलमान का भाई है, उसमें हम लोगों को क्यों साथ कोई नहीं देता? बस 4 लोग आके हमको उल्टी बातें सुनाते हैं और घर में बिठा देते हैं। तो बस आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या अंदाज है। बस आप दस्तूर हिंद को जानने की कोशिश करें। इसलिए हर हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो दस्तूर हिंद को जानने की कोशिश करें और दस्तूर हिंद की रोशनी में इनकी जालिमाना कोशिश को रोकने की कोशिश करें। अंग्रेज यहाँ से चले तो गए हैं, लेकिन अफसोस होता है कि उस नजरिए को मानने वाले अभी भी मौजूद हैं, जो अंग्रेजों के बुरे असलात को कबूल करके हिंदुस्तान को मजहब, इलाके, बिरादरी, अमीरी व गरीबी, रंग व नस्ल की बिना पर तकसीम करने में लगा है और मुसलमानों के साथ मजहब की बुनियाद पर मुतस्सिबाना रवैये की तहरीक चलाई जा रही है। इसके बावजूद भी हिंदुस्तानी मुसलमान यहाँ की दम तोड़ती जमहूरियत का एहतराम करते हैं और 26 जनवरी और 15 अगस्त को परचम लहराते हैं। और हमारे मदारिस इस्लामिया में भी 26 जनवरी और 15 अगस्त को परचम लहराने की तहरीक मुनाकिद की जाती है और अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ तराना पढ़ा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलाम। वाह वाह, क्या बात है।
बिरादरान इस्लाम, ये हैं आर्मी शहर के खड़गपुरा वार्ड, गोरक्षर वार्ड वगैरह और दूसरे वार्ड से पढ़ने वाली बच्चियाँ। ये 10वीं 11वीं 12वीं ऊपर के पढ़ने पढ़ाने वाली बच्चियाँ हैं जो माशाअल्लाह बापर्दा 26 जनवरी रिपब्लिक डे के प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं। और ये सारे जो हैं अभी मदरसे में भी पढ़ती हैं और स्कूल में भी पढ़ती हैं, छोटी बच्चियाँ हैं। और ये बहुत खूबसूरत आज अपना प्रोग्राम किए हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे। और थोड़ा सा 2-4 लाइन और इनको बतौर ट्रेनिंग पढ़ाया जाता है। और देखिए 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो हम लोग एक जगह पर मना रहे हैं और अपने मस्तूरात के अंदर पैगाम पहुंचाने के लिए इन बच्चियों को भी रेडी कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं। अगर हमारे मुल्क के आज़ाद करवाने में हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जहां कुर्बानियां दी है, वहीं पर हमारे मुल्क की बहुत सारी ऐसी मुस्लिम ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। इसमें सबसे एक बड़ी खुसूसी की बात यह है, इन बच्चों को भी शायद मालूम हो या मालूम हो जाए कि ये जो हाथ में तिरंगा लिए हैं, तो मालूम हो कि ये जो तिरंगा हाथ में लिए हैं, ये तिरंगे की डिज़ाइन भी करने वाली एक मुस्लिम खातून हैदराबाद की थी। लेकिन हैरत यह है कि हमारी कौम पढ़ती लिखती है नहीं, गैरों के बताए हुए तरीके पर हा हू कर लेना बस। इसलिए हम अपना नारा दोहराते हैं, सब पढ़ें, जब हम पढ़ेंगे मेरी सच्ची सहेली, मेरी अच्छी किताब। इन सारे बच्चियों ने ये अहद किया है कि हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, बढ़ेंगे। अब मिलकर के हम एक नज़म के 2-3 अशार पढ़ाते हैं। मैं सच्ची हूँ और अच्छी हूँ, सच्ची हूँ और अच्छी हूँ, मैं मिलकर रहती हूँ, मैं मिलकर पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं भारत की बच्ची हूँ, भारत की बच्ची हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम अपने नबी के, हम वलियों के, हम पढ़ लिख कर इस्लाम के घबरा गए, अपने सर से वो बांधे हुए थे कफन।